Assalamu alaikum. Our today's topic is about the communication on the telephone or the communicate on telephone. That how we must communicate on the telephone, telephonic manners, the etiquettes on the telephone, how we should talk when we are talking someone to on telephone. That is all about in our today's lecture. और इस लेक्चर में हम डिफरेंट प्रोसेस और स्टेप्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के कि हमें कैसे टेलीफोन पे कम्युनिकेशन करनी चाहिए. Here is a structure. The structure is divided into three parts: the beginning, middle, and end of the telephone. Means the beginning means the starting of the call. Middle means the mid of the obviously the mid of the call, and then end. End means the goodbye tone when you are ending the call. Beginning, it is like greetings. Being Muslims, we people say assalamu alaikum. We ask someone about health and all that greetings related to the someone's calls. हम उसे greeting करते हैं सबसे पहले. Without greeting, it's like that you are not a mannered person, so greeting is the must one. Then the second point is identification of the nature of the call, कि आपको किस टाइप की कॉल रिसीव हो रही है. लाइक that you are receiving call from your boss, so that would be the most serious and the formal one. That if you are receiving call from your teacher, from your HOD, from your colleague, or somehow call from your friend, कि फैमिली की कॉल भी हो सकती है, आपके कजन्स की, आपके फादर की भी हो सकती है, मदर, सिस्टर एंड वट एवर. सो जिसकी भी कॉल है उसकी दैट इज द यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कॉल. हमारी टोन, हमारी ग्रीटिंग्स, हमारा एक्सेंट, हमारा जो लहजा है वो उस कॉल के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि दैट वी आर वेरी फ्रेंडली विद आवर बॉस, वी आर वेरी इनफॉर्मल विद आवर बॉसेस, and we are very formal with our friends. Friends के साथ हम informal बात कर सकते हैं, but we are not bound to talk formal with our bosses, with our teachers, or with our the head ups, right? So that is the identification of the call. The second one is after greeting, after the nature of the call. The second part is the middle. The middle is आपको कॉल से पता चल जाएगा कि अगर आपको ये शख्स कॉल कर रहा है तो वो क्या बात करनी होगी, क्या इश्यूज डिस्कस करने होंगे, क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी. It is like this कि if you are receiving call from your heads mean your bosses or the most senior person, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये आपके साथ किस टाइप की बात करना चाह रहे हैं, क्या इश्यूज डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. अगर आपका फ्रेंड कॉल करता है आपको तो तभी आपको आइडिया हो जाएगा. एंड इफ यू आर रिसीविंग कॉल फ्रॉम योर फैमिली, from your home, so you can get the idea or the information which you are receiving from your family. Then we have the end. End means the summary or the agreement of the next sessions, means जो भी बात हुई है, जो भी उसमें कमिटमेंट हुई है, जो भी उसके फॉलो अप्स है, आप उसको फॉलो करोगे. और उसके बाद आपका साइन ऑफ इज ऑल्सो विद द ग्रीटिंग्स. As I have told you that being Muslims, we people use the Islamic greetings like Assalamu alaikum, and at the end we say Allah Hafiz and Fi Amanillah. So these are the signs or sign of greetings at the end of the call. So इस तरह the structure of a call इसको हम divide कर रहे हैं three parts में. That is like the beginning, middle and end of the call, right? Okay. That is opening or answering a call. यहाँ पर we have like outbound and inbound. Outbound mean when you are receiving a call, so it is like you are saying, और आपको पता होना चाहिए, आप पूछते हो that say who are you. अगर आप नहीं जानते उस शख्स को जो आपको कॉल कर रहा है, then you have the right to ask कि आप कौन है, आप कौन बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आउटबाउंड में कि आप कॉल रिसीव करते ही आप पूछे जी आप कौन है, इवन कि आप उसको जानते भी हो तब भी. आप अगर नहीं जानते देन यू कैन आस्क हु आर यू. चेक हु आर टॉकिंग टू. आवाज सुनते ही आफ्टर द ग्रीटिंग आपको आइडिया हो जाता है कि कौन बात कर रहा है. Either a female or a male is talking to you,
either a senior or a junior, either a friend or a relative, they are calling you. So उसके बाद उसकी आवाज़ से आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप कॉल कर रहे हो, अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, the reason of the call, so you people are talking on a reason, you can ask the reason of calling you, and you can also say to the next person कि आपने कॉल क्यों की, right? If it is inconvenient for the other people to talk, कॉल करने के बाद, being an educated and a mannered person, you can ask to the other person कि क्या आपके लिए ये कन्वीनियंट है इस टाइम मुझसे बात करना। सिंपल, uh, if you have time or if you are not busy, can I talk to you? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, हम जिसको कॉल कर रहे हैं, हम ये समझते हैं और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, और हम ये चाहते भी हैं 101% कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो कॉल फौरन सुने भी, और वो तवज्जो से भी सुने, और उसके पास इतना टाइम हो कि वो आपकी कॉल जो है जितनी भी लंबी आप कर रहे हो वो उसको इजीली सुने। लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक द रशी लाइफ, you people are living a mechanical life in which everyone is busy in his or in her own tasks, in his or in her own businesses. So we have to ask if it is convenient for the other people to the person to talk, कि अगर उसके लिए आसान है, टाइम है उसके पास बात करने का या कॉल सुनने का, तो तब आप अपनी बात को कंटिन्यू करोगे। हाँ, अगर वो शख्स कह रहा है कि यस आई हैव टाइम, यस आई एम नॉट बिजी, यस इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, तब आप उससे बात कर सकते हो। अगर वो कहता है कि नहीं, सॉरी आई एम बिजी, सॉरी आई विल टॉक यू लेटर, सो प्लीज़ इसको अपनी अना का मसला या इसको अपनी इंसल्ट फील नहीं करना, राइट? Second is inbound. Outbound means these are those things which are compulsory but not so much. But the inbound means that is the 101% compulsory things. The number one is answer the call within 4 rings. अगर आप देखो कॉल आ रही है, try to answer the call within 4 rings. 4 rings के अंदर अंदर आप कॉल अटेंड करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रही, लेट्स सपोज द फोन इज नॉट विद यू, यू आर नॉट नियर द फोन, दैट इज अ सेपरेट मैटर। लेकिन अगर आपके पास फोन है और रिंग हो रही है, सो यू हैव टू आंसर विद इन 4 रिंग्स। आंसर विद अ शॉर्ट बट प्रोफेशनल ग्रीटिंग। हमेशा जो है फोन पर शॉर्ट टॉक करें और प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स के साथ करें। प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स, वी हैव रेड अ लॉट ऑफ ग्रीटिंग्स टाइप्स लाइक अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड ऑल दैट थिंग्स। उन सब के साथ आप ग्रीटिंग करोगे। अगर आप किसी ऐसे शख्स को कॉल कर रहे हो जो आपको नहीं जानता, या आपको जानता भी है लेकिन इतना फेमिलियर नहीं है आपसे, सो स्टेट योर नेम क्लियरली। अपने नाम को बहुत क्लियरली बताओ that you are this from that department or that company, right? And that is the purpose of your call. इसमें कोई हर्ज नहीं है। लाइक किसी ऐसे शख्स को कॉल करना जो आपको नहीं जानता या आपको जानता भी है लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानता, तो आप सिंपली उसको कहो जी कि मेरा नाम ये है और मैं इस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ, मुझे आपसे इस टॉपिक पे बात करनी है। सिंपली गो थ्रू द रेलिवेंट डेटा प्रोटेक्शन क्वेश्चंस। जितनी भी बात हो रही है, चाहे किसी से भी फॉर्मली या इनफॉर्मली, डोंट डिस्क्लोज योरसेल्फ सो मच। बातों को इतना ज़्यादा क्लियरली, इतना ज़्यादा आउटस्पोकनली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जितना हम हो जाते हैं। अगर तो ज़रूरत है, ओके, यू कैन गो, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, बट अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अवॉइड दोज थिंग्स, बिकॉज दैट इज़ अ मशीन। The telephone is like a machine. We people are talking on machine, so machine can be the wrong. Your voice can be the wrong. The lines or the signals that can be the wrong. Very serious, very personal, very like official questions or the things you must say face to face. आपने देखा होगा टीवी पर वैसे लोगों को, they just call to each other if they have a very serious thing to say to each other, कि okay fine, हम मिलते हैं, बैठते हैं, फिर बात करते हैं। It means that something is very serious, that the other person is not willing to disclose it on the telephone.
let's have a cup of tea, let's have a small meeting, let's meet in a restaurant, or let's meet at my home, then we can discuss it. This is a very right and appropriate way कि जिससे आप अपनी बहुत ज़्यादा सीरियस बात को आप फेस टू फेस कर सकोगे, आप उसको टेलीफोन पे नहीं करना चाहिए आपको. सो these are the outbound and the inbound of the call. But it happens in our society that if we are receiving a call, हम एक बार call receive करते हैं, the phone is ringing continuously, we are receiving call, then it is ringing again, second time and the third time, we are very much busy. What should we do? We must give a text, we must call back to that person when we are free. फ्री होते ही हमें उस शख्स को कॉल करनी चाहिए, उसको टेक्स्ट बैक करना चाहिए कि सॉरी, आई वाज बिजी एट दैट टाइम, सो आई कुडंट टेक्स्ट यू, आई कुडंट रिप्लाई यू बैक. कोई ऐसी सीरियस बात तो नहीं है, बिकॉज यू आर कॉलिंग मी, you were calling me continuously, so I was busy and meeting in class or whatever you were. So that is the very professional and the official way of having a phone. फोन रखते हुए किसी का फोन ना उठाना, दैट इज अ बिग नॉन मैनर्ड थिंग. वो एक अलग बात है कि अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट हैविंग अ फोन and not picking the call of the other person, that is a very bad thing from your side. All right. The second thing is the voice tone. Voice tone as here is like the scooty, or the we say it the putputty, right? Here are we have like the Vespa. The voice tone is connected with the Vespa, means volume. The number one is V for the volume, means your volume shouldn't be too much high, right? It's like you are shouting on the phone. Your volume shouldn't be too much low. It's like you are whispering. इतना ज़्यादा loud नहीं होना चाहिए कि साथ वाले इर्द गिर्द के जो माहौल के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ये समझे कि आप चिल्ला रहे हो फ़ोन पे. इवन यू आर टॉकिंग और यू आर डिस्कसिंग अ जनरल थिंग. इतना ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि जो नेक्स्ट पर्सन है कॉल पर उसको खुद को समझना है. E for here is the energy. Energy means अपनी एनर्जी को इस तरह नहीं रखना कि that you are very active at the beginning of the call and you are lethargic. Lethargic mean it's like the just going to lay down, it's like going to faint, कि अब आप बस बेहोश होने वाले हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है और बात करने की. सो एट द एंड आपका ये हाल हो. योर स्पीड सेम वन, स्पीड इतनी स्लो भी नहीं होनी चाहिए कि द नेक्स्ट पर्सन इज गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम यू, और इसकी आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जो है कि नेक्स्ट पर्सन आपकी स्पीड के साथ चल ना सके, फॉलो अप ना कर सके. Then we have the pitch. Pitch is like, it is like the linguistic term. Pitch होता है quality of the voice, right? अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बनाया है और दोनों की पिच डिफरेंट है. औरतों की पिच थोड़ी बारीक होती है, मर्दों की पिच थोड़ी भारी होती है, इसलिए मर्दों की आवाज़ जो है वो भारी होती है, औरतों की थोड़ी बारीक होती है. बच्चों की और औरतों की जो पिच है दैट इज द सेम, मर्दों की पिच जो है वो डिफरेंट होती है. When you are talking, your pitch should be the same one. Means if you are male, sounds in a male, speak in a male sound. Your pitch should be like you are talking a male. It's not like this that the other person is asking, who are you? वो आपसे पूछे कि सर आप मैम हैं या सर हैं. It's like this, right? So आपके pitch जो है वो भी accurate होने चाहिए. Articulation. Articulations. Articulate is like the movement. The movement is movement of your speaking organs, articulatory organs. Articulatory organs वो organs होते हैं जो हमें हमारी आवाज़ प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प आउट करते हैं. आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स में हमारे जॉ लाइन्स, हमारे टीथ, टंग, पैलेट. पैलेट कहते हैं तालू को, राइट. देन वी हैव द लिप्स, वी हैव द एल्व्यूला. अगर हम मुंह खोल के हमारे पैलेट यानी कि तालू के एंड पर एक गोश्त का लोथड़ा हिलता हुआ नजर आता है, दैट इज द ओव्यूला. ओव्यूला की मदद से
हमारी आवाज़ जो है प्रोड्यूस होती है। ये सारे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स हैं, इनका कनेक्शन ये है, ये हमारे आवाज़ प्रोड्यूस करने में हमें मदद करते हैं। हमें इतना ज़्यादा मुंह खोल कर भी बात नहीं करनी चाहिए कि वर्ड्स जो हैं वो ठीक से प्रोनाउंस ना हो, और इतना ज़्यादा मुंह बंद करके भी नहीं कि जो वर्ड आप प्रोनाउंस करना चाह रहे हो उसकी जगह पे वो कुछ और हो रहा हो। सो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं, इनका अप्रोप्रिएट यूज़ जो है वो भी हमारी वॉइस टोन में बहुत हेल्प आउट करता है। ऑलराइट, देन वी हैव स्ट्रक्चरिंग अ कॉल। स्ट्रक्चरिंग अ कॉल, यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ की गई है, दैट इज़ द फनल टेक्निक। फनल टेक्निक, द फनल इज लाइक, जो आपको शेप यहाँ पर नज़र आ रही है, वी से एट, वी कनेक्ट द फनल विद द कुप्पी, जिसको हम कुप्पी की शेप कहते हैं, और इट्स लाइक द फनल इज ऑल्सो with I am not getting the exact word to describe that the funnel shape. Okay, but it is in the funnel shape. पहला जो है that is the open questions. Open questions. Then we have the probing questions. Then we have the specific and the reflective questions. Then we have the closed. अभी पीछे हमने जो structure of the call में पढ़ा था, beginning, middle and the end. उसी को अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस मींस जिसमें आप कॉल करने वाले को एक ओपन हैंड दे रहे हो, दैट ही और शी कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन अ वेरी फ्रेंडली वे। फ्रेंडली वे मीन्स कि वो आप, और जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा रिलेटेड टू योर सेल्फ होते हैं। जैसे कि जी आप कौन है, आप कहाँ से बात कर रहे हो, आपको मेरा नंबर किसने दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई अगर स्ट्रेंजर आपको कॉल कर रहा है और अ पर्सन हु इज कॉलिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ही और शी कैन आस्क यू द ओपन क्वेश्चंस। सेम इज केस विद यू। अगर आप किसी से बात कर रहे हो फर्स्ट टाइम, सो यू कैन ऑल्सो आस्क द ओपन क्वेश्चंस, दैट हु आर यू, मे आई नो योर नेम, may I know your company name from where you are calling, or may I ask the reason why you are calling me? So such kind of question जो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होंगे वो आपके ओपन क्वेश्चंस होंगे। और ओपन क्वेश्चंस में दोनों वे से एक्सप्रेस हो सकता है। दोनों वे से एक्सप्रेस मीन्स कि आप भी पूछ सकते हो और द नेक्स्ट पर्सन वो भी पूछ सकता है। Then we have the probing questions. Probing questions mean the formal one. इसमें आप reasons पूछ सकते हो, means to enable you to get a better understanding. इसमें आप उसकी call करने के reason पूछ सकते हो। It is not like this कि जी आपके घर से कॉल आ रही है और आप जी पूछ रहे हैं हाँ जी कॉल क्यों की है। पूछ सकते हो कि जी क्यों कॉल की है, बट it's like not so for in so formal way कि you are talking to your father that yes Abbajan, why are you calling me? So that is the probing questions are related to the most formal one, जिसमें आप रीजन पूछ सकते हो। रीजन भी इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में नहीं कि हाँ जी जी आपने मुझे क्यों कॉल की। You can ask the person that may I ask you the reason? May I ask you that why you are calling me at this time? Means ask the questions but in a very mannered way. Then we have the open, specific and reflective questions. कॉल की, उसके बाद हमने उसको जो भी टॉपिक जो भी इश्यूज को डिस्कस किया, if we have done any commitment वो हमने डिस्कस की। then we have the reflective questions. Reflective questions mean you are ensuring someone about the commitment. आप ये यकीन दहानी कर रहे हो उसको दोबारा से पूछने के, यानी कि अगर आपने कहीं मीटिंग करनी है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो इन रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ओके ठीक है, फिर हम कल मिल रहे हैं 12 बजे इस वेन्यू पर, राइट? ओके ठीक है, फिर 16 दिसंबर को आपकी बर्थडे है। सो दीज आर द रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। जो भी बात मिडल में डिस्कस हुई है उसको थोड़ा सा रिकन्फर्म करना, उसको थोड़ा सा रीअश्योर करना, इंश्योर करना, दैट इज द रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस का फायदा ये होता है कि ये अगर थोड़ी सी कोई एम्बिग्विटी रह गई है, कोई कंफ्यूजन रह गई है,
कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि जी ये मुझे समझ नहीं आई या नेक्स्ट पर्सन को समझ नहीं आई होगी, तो वो आप उसको रिपीट कर सकते हो। आप उसको पूछ सकते हो, आपको मेरी बात की समझ आ गई है? आप उसको ये पूछ सकते हो, ओके हमारी तरफ हमारी ये डील डन है। Such kind of questions, they are like the reflective questions. And then we have the closed questions. Again, greetings or the agreement. It happens in our society. हमारी सोसाइटी में क्या होता है, अगर हम कॉल करते हैं किसी को, कॉल करने के बाद क्या होता है, बातचीत हुई और साथ ही हम फ़ोन टक से बंद कर देते हैं। वी डोंट से अल्लाह हाफ़िज़, वी आर नॉट बाउंड आवरसेल्फ टू से फ़ी अमानिल्लाह और टेक केयर बाय एंड ऑल दैट थिंग्स। हम टक से फ़ोन कर देते हैं। समटाइम इट इज़ ड्यू टू सम रीज़न्स, मे बी क्रेडिट ख़त्म हो गया है या बैटरी डाउन हो गई है या कुछ और रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग लो बैटरी, यू कैन से टू दैट पर्सन कि मेरा फ़ोन कभी भी बंद हो सकता है। अगर आपका फ़ोन लेट्स सपोज़ बंद भी हो गया है विदाउट द ग्रीटिंग्स, तो आप उसको जब आप उसको ऑन करोगे, चार्ज अप करोगे, आप उसको कॉल बैक करके या आप उसको टेक्स्ट बैक करके ये बता सकते हो विद द एक्सक्यूज़, विद द हर्टिएस्ट सॉरी कि जी मेरा फ़ोन बंद हो गया था ड्यू टू चार्जिंग और ड्यू टू बैलेंस, द रनिंग ऑफ शॉर्ट क्रेडिट एंड ऑल दैट थिंग्स। वो सब कुछ आपका क्लोज्ड क्वेश्चंस में आ सकता है, राइट? So such kind of manners we people have to focus, we people have to understand, because whatever we are saying, whatever we are using, that is showing your education, that is showing your parental training, that is showing your understanding of the things कि आपके पास जो चीज़ है वो आप उसको कितने अच्छे से efficiently और understandably वे से आप उसको यूज़ कर रहे हो। So that is the funnel technique, and I guess it is very much important for all of you. ना सिर्फ ये आपके लिए बल्कि सोसाइटी में जितने भी लोग सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, अब तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास सेल फोन है, चाहे वो स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है या चाहे वो रेडी वाला जो भी है, सबके पास सेल फोन है। तो ये चीज़ें, ये बातें जो है हम सबको पता होनी चाहिए। Then we have another structure, that is a T. We call it T. The first one was the calling a structure, three-step structure. Second हमने पढ़ा funnel का, right? ये third है, that is a T, right? Here is a T. T for the tell, E for the explain, A for the ask, right? Same tell purpose of your call, means आपने किस purpose के लिए call की या किसी ने आपको किस purpose के लिए call की। Simple, the title of the purpose or the part of the purpose. Then we have this explanation, the theme, same thing that we are explaining the things कि जी ये explanation आपने डिटेल बतानी है जी कि आपने इस पर्पस के लिए कॉल की थी और इसका मकसद ये था and all that. Then you can, then we have the last point, that is the ask. Ask mean you can ask the question, right? And you can say the question in a reflective form. जो हमने पीछे पढ़ा था कि रिफ्लेक्टिव ओपन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो इस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में आएंगे। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द टी। Listening recording, that is the cures. The number one, we have divided these five parts into cures. Here the C for the concentrate. Concentrate mean focused on the call. Then we have the acknowledge. Acknowledge the person or acknowledge the call if you are the right person. Means अगर आपको कोई कॉल कर रहा है और आपको कह रहा है जी कि यस आप मिस्टर अली हैं, अगर आप मिस्टर अली नहीं है, you are not acknowledging, you are saying that I am not that person. But if you are really Mr. Ali, you can say yes I am Mr. Ali. Then we have the record. Record is not like the recording आपने फोन पे ऑन कर ले, it's like the recording, you are recording each and everything in your mind, right? In your mind through your ear. Then we have encouragement and the empathies. Encouragement mean कोई अगर आपको फोन कर रहा है रात में भी, let's suppose I'm not saying late night, but out of official hours, तो वो उन official hours में भी आप उसको discourage नहीं करोगे. You can encourage that person कि okay fine, आपने मुझे इस time call किया, it's perfectly okay. लेकिन साथ में official timing आपके mind में भी होनी चाहिए, the next person को भी होनी चाहिए. Official timing of calling to any person is till 8 p.m. 8 बजे के बाद कोई भी formal call एक दूसरे को नहीं की जा सकती. That is the official timing. Then we have the summarize or the summary.
दैट इज द सेम लाइक द रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आप उसको समराइज कर सकते हो, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रिपीट कर सकते हो. Signposting and controlling, we will discuss these points, the next points in our next lecture. I hope you people are getting each and every point, and I hope these are very much interesting to all of you. So go through it, and if you have any problem, you can ask me again. Thank you.